थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग परदेसी पल्स। स्टूडेंट्स की एग्जाम में चीटिंग भी कराना, ब्राइब्स भी लेना, और इस स्कैंडल ने अमेरिका में एजुकेशन फेयरनेस पे एक बहुत बड़ी डिबेट क्रिएट कर दी थी। Who here is scared when they go through these drills? Elijah, why are you scared? Arrives at the north end of the hall. If there's kids and they're saying there's kids. Officers move in on room 111. Okay. Classroom down the hall, and that the door is locked. We don't got things like this down there, I can't say. So this one's hurting me in the heart right now, man. It all smells the same. You can almost taste it. It's like, it just tastes like football in here. Got the benches, I'm sure. Go ahead. Come on. I think that's as far as inside foot. Still got it. So on one hand, you have American schools that have airport-style security because of gun concerns. And on the other hand, classrooms may also display moral teachings meant to guide students' behavior. For someone coming from India, both these things can feel surprising. Different countries, different challenges, different ways of trying to keep students safe. I'm scared because if something actually really happens, it could hurt me or any one of my friends. There's a lot of dead bodies. I know how to handle these situations. My dad taught me when I was a little girl. कॉलेज एडमिशन स्कैंडल की कुछ वेल्दी पेरेंट्स जो हैं वो पैसा देकर भी, डोनेशंस देकर भी एडमिशन सिस्टम को मैनिपुलेट कर लेते हैं। All of our friends are only talking about one thing, and it's this story. The U.S. Attorney's investigation also found Singer paid bribes to exam administrators to help his clients cheat on the SAT, ACT, and other tests. We help the wealthiest families in the U.S. get their kids into school. So I've done 761 what I would call side doors. The front door means getting in on your own. Created this kind of side door and want a guarantee. If somebody were to catch this, the largest college admissions scam ever prosecuted by the Department of Justice. My view of the admissions process is some students getting in on pure merit, but many others getting in due to preferences that skew rich and white. Another powerful part of American system is something called career and technical education, called CTE. Through CTE programs, students can specialize in fields like information technology, construction, agriculture, hospitality, manufacturing. Some students even graduate high school with industry certifications that help them get jobs immediately. But as many schools partner with local companies, students can do internships, apprenticeships, where they experience real workplace while still in school. So by the time they graduate, they already understand how the real world works. This system allows students to discover their interests early instead of realizing it after college. एक लॉ जिसका नाम है Individuals with Disabilities Education Act. इस लॉ के अंदर हर बच्चा जिसको लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, ऑटिज्म हो, स्पीच डिफिकल्टीज हो, उन्हें स्कूल में स्पेशल सपोर्ट मिलता है। उनके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है, IEP वो बनाया जाता है। गन्स, वेपन्स, एक्सप्लोजिव, ऐसे डेंजरस आइटम्स स्कूल में ना ले आए। थैंकफुली ये इशू हमारे इंडियन स्कूल्स में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये एक सेफ्टी कंसर्न यहाँ पे बहुत होता है क्योंकि इतने इंसिडेंट्स हो चुके हैं, बड़े बड़े शूटिंग के, स्कूल्स में शूटिंग हो जाती है, और इन ट्रेजेडीज के बाद स्कूल्स ने जो है सेफ्टी पॉलिसीज, सिक्योरिटी पॉलिसीज और सेफ्टी ड्रिल्स भी जो है ये सब बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। They advised me that the door was locked. As soon as it closes, it's locked from the inside, and you got to have a key or someone from the inside to open it. Which way is the shoot? On the other end of the hall, with a Bortak unit, Hey, hold the channel! during the initial gunfire. कैसे हैं आप सब? और आज फिर से एक एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड विच वाज ऑन बुलिंग वो नहीं देखा हो तो प्लीज देखिए, उसमें काफी इंफॉर्मेशन है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। लेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो अबाउट आवर चैनल। और हम बात कर रहे हैं इंडियन क्लासरूम्स और अमेरिकन क्लासरूम्स कैसे डिफरेंट हैं, थोड़ा बहुत एजुकेशन पैटर्न और पूरा एजुकेशन सिस्टम। अमेरिका हो, इंडिया हो, दोनों बहुत बड़े कंट्रीज हैं। हर स्टेट, स्कूल, क्लासरूम, एनवायरनमेंट
हर जगह अलग हो सकता है। तो जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो एक जनरल रिसर्च है, जनरल ऑब्जर्वेशंस है, उसके ऊपर बेस्ड है। क्योंकि बहुत से इंडिया में स्कूल्स आजकल इंटरनेशनल पैटर्न को अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल हो, अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे हो, तो ये और ऐसे काफी सारे स्कूल्स जो है ग्लोबल करिकुलम फॉलो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट की। अगर आप एक ट्रेडिशनल इंडियन क्लासरूम में जाओ तो आप ज्यादातर देखोगे टीचर बोर्ड के पास खड़ी है, स्टूडेंट्स एक रो में साथ बैठे हुए हैं और नोटबुक्स में वो नोट कर रहे हैं जो टीचर लेक्चर दे रही है, बता रही है। क्लास में एक बहुत फोकस्ड सब लोग बैठे होते हैं, टेक्स्ट बुक लर्निंग होती है, बुक्स होती है टेबल पे, मे बी ई बुक्स। स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेड होता है कि लेक्चर को जो टीचर कह रही है वो बड़े ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ और साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाओ। अब इमेजिन करो एक अमेरिकन क्लासरूम, यहाँ एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक टेबल पर भी इकट्ठे बैठते हैं, प्रोजेक्टर भी होता है और टेक्स्ट बुक्स लिमिटेड होती है पर लिमिटेड होती है। यहाँ पे बच्चे ग्रुप्स में काम करते हैं और उसी हिसाब से उनको असेस भी करते हैं। कई बार बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा काम तो मैंने किया था, मैंने इतना एफर्ट किया था, उसने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी असेसमेंट ऐसे ही कंसिडर होता है। और बच्चे ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, गोल सेम ही है, लर्निंग है, लेकिन इंटरैक्टिव और एंगेजिंग उसे ज्यादा बनाया जाता है। टीचिंग मेथड्स भी डिफरेंट होते हैं। इंडियन क्लासरूम्स टीचर सेंटर्ड ज्यादा होते हैं। सिस्टम में थ्योरेटिकल नॉलेज, सिलेबस कंप्लीट करना, एग्जाम की प्रेपरेशन और होमवर्क देना, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेमोराइज करनी पड़े। अमेरिका में टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट और स्टूडेंट सेंटर्ड ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है टू आस्क क्वेश्चंस, आप सवाल पूछिए, डिबेट करिए, ग्रुप प्रोजेक्ट्स करिए, प्रेजेंटेशंस दीजिए, ओपन बुक एग्जाम्स भी होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत एनकरेज करते हैं, क्रिएटिविटी, एनालिटिकल स्किल्स। लर्निंग अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है। इंडिया में स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फाउंडेशन मिलती है। अमेरिका में फोकस होता है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स चूज करने की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम लार्जली सेंट्रलाइज्ड होता है। मेजर बोर्ड्स इंक्लूड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये बोर्ड्स जो हैं वो सिलेबस और एग्जाम्स डिफाइन करते हैं। अमेरिका में सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन करता है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बट डिसीजंस मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स लेते हैं। इसलिए डिफरेंट स्टेट्स में एजुकेशन सिस्टम वेरी भी कर सकता है। क्लासरूम का डिसिप्लिन, इसके बारे में अगर बात करें तो इंडिया में क्लासरूम डिसिप्लिन काफी स्ट्रक्चर्ड होता है। टीचर जब क्लास में आती है, स्टूडेंट खड़े होकर उनको ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टीचर। टीचर एक अथॉरिटी फिगर जैसी लगती है। अमेरिका में क्लासरूम्स थोड़े से इनफॉर्मल हैं, बल्कि टीचर दरवाजे पे खड़ी होगी, स्टूडेंट्स को उनको ग्रीट करेगी और क्लास डोर पे खड़े होकर उनको वेलकम करती है। अमेरिकन स्कूल्स में बच्चों के पास काउंसलर्स, एकेडमिक एडवाइजर्स, ये सब उन्हें हेल्प करते हैं मेंटल हेल्थ, करियर प्लानिंग में, कॉलेज एप्लीकेशंस में, एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए भी सपोर्ट करते हैं। इंडिया में स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सालों साल प्रिपेयर करते रहते हैं किसी एग्जाम के लिए। एक डॉक्यूमेंट्री भी है जिसमें दिखाया गया है, जो डिफरेंसेस दिखाए गए हैं, स्टूडेंट्स के लाइफस्टाइल भी उसमें कंपेयर किए गए हैं। 2 मिलियन मिनट्स नाम है उसका। हाई स्कूल के 4 साल में रफली 2 मिलियन मिनट्स होते हैं। फिल्म में कंपेयर किया गया है अमेरिकन स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, चाइनीज स्टूडेंट्स, और उसमें दिखाया गया है कि अमेरिकन स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटीज में टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। इंडियन और चाइनीज स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं पढ़ाई में, स्टडिंग और प्रेपरेशन में अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाते हैं। अमेरिका में यूनिवर्सिटीज होलिस्टिक एडमिशंस फॉलो करती है। यूनिवर्सिटीज कंसिडर करती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लीडरशिप, एसेज, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स। तो ओवरऑल अचीवमेंट्स देखते हैं उनके, वॉलंटियर वर्क उन्होंने क्या किया है, समाज के लिए उन्होंने क्या काम किया है, सारी चीजें कंसिडर करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि बस बहुत अच्छे मार्क्स, बच्चा बहुत पढ़ता आया है तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, सिर्फ इसलिए एडमिशन दे दिया जाएगा। एक आईवी लीग एडमिशन स्कैंडल का एक नेटफ्लिक्स सीरीज थी, अगर आपने सुना हो।
इस सिस्टम में एक शॉकिंग स्कैंडल भी हुआ था। एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है ऑपरेशन वार्सिटी ब्लूज, ये कॉलेज एडमिशन स्कैंडल के ऊपर बेस्ड है। इसमें दिखाया गया कि कुछ वेल्दी पेरेंट्स जो हैं वो पैसा देकर भी, डोनेशंस देकर भी एडमिशन सिस्टम को मैनिपुलेट कर लेते हैं। और इसके मास्टरमाइंड थे विलियम रिक सिंगर। और क्या तरीका था, फेक एथलेटिक प्रोफाइल्स बनाना बच्चों की, स्टूडेंट्स की, एग्जाम में चीटिंग भी कराना, ब्राइब्स भी लेना। और इस स्कैंडल ने अमेरिका में एजुकेशन फेयरनेस पे एक बहुत बड़ी डिबेट क्रिएट कर दी थी। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ऐसी चीजें होती हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी होती हैं। Facilitating bribing those coaches and university administrators to guarantee his clients' children would be admitted as recruited athletes. If they needed to raise $250,000 or $500,000 for the program, they would call me and say, "Hey, I have a spot. Do you have a family that would like to come here?" एक और चीज है जो थोड़ी सी डिफरेंट है अमेरिकन स्कूल्स में। अचानक एक अनाउंसमेंट होती है, अटेंशन स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। ये कोई इमरजेंसी नहीं होती है, एक्चुअल रियल इमरजेंसी नहीं है, एक प्रैक्टिस ड्रिल होती है। अमेरिका के स्कूल्स में ऐसे इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल्स भी होती है जो रेगुलरली कंडक्ट की जाती है। अलग अलग टाइप से ड्रिल्स होती है, फायर ड्रिल होती है, लॉकडाउन ड्रिल होती है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल होती है। इन ड्रिल्स का पूरा पर्पस सिंपल होता है, अगर कोई भी रियल इमरजेंसी आ जाए तो स्टूडेंट्स और टीचर्स को एग्जैक्टली पता हो कि उन्हें करना क्या है। Class makes an announcement, and I want to remind. Please lock and secure your classrooms at this time. We are pretending there is an intruder coming into the office. Be right here to help protect you. Now we just need to sit quietly and wait for further direction. Who here is scared when they go through these drills? Elijah, why are you scared? Attention, students and staff. Now begin a lockdown drill. कई स्कूल्स में फायर डिपार्टमेंट और पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं। स्टूडेंट्स को बताया जाता है फायर सेफ्टी, इमरजेंसी रिस्पांस। ऑफिसर्स फायर ट्रक्स भी स्कूल में लाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं सारे इक्विपमेंट कैसे काम करते हैं, क्या क्या वो लोग यूज करते हैं, उनसे बात करते हैं बच्चों से। गोल होता है अवेयरनेस एंड टू बी प्रिपेयर्ड। एक और चीज है जो अमेरिकन स्कूल्स में आपको दिखाई देगी, स्कूल सिक्योरिटी एंड बैग चेक्स। अमेरिका में स्कूल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कई इंसिडेंट्स के बाद स्कूल्स ने सिक्योरिटी सिस्टम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। गन्स, वेपन्स, एक्सप्लोजिव्स, ऐसे डेंजरस आइटम्स तो एंटर नहीं कर रहे स्कूल, इसलिए ये एक सेफ्टी कंसर्न जो है ये काफी डिस्कस होता है। काफी इंसिडेंट्स हुए हैं इस तरह के, आए दिन होते रहते हैं। AI censored metal detectors before and after the school day. The detectors, made by a company called Evolve, cost $21,000 each, and walking into school, look analysis to identify guns, knives, and other dangerous items. If it does find an item, like this SRO's gun, it alerts staff. This is really the next level of security that we're seeing, from vape detection to license plate recognition, streamlined communication with police in the event of crisis. To do things that we'd never even really thought about. Like sensors that detect vaping, motion-activated cameras, and software that uses facial recognition to alert police when someone not allowed to be on campus shows up, just by the color they're wearing. It also has the ability that if we're looking for a student, say, and we know they had a red shirt on, we can go in and put that parameter in there, or that filter, and say anyone in a red shirt, and it'll pull up every image of anyone in a red shirt. फोन पॉलिसी भी जो है ये एक मेजर चेंज अभी कुछ ही महीनों पहले यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि अब तक स्टूडेंट्स जो थे फोन हाथ में रखते थे और टैबलेट्स उनके पास अब भी होती हैं, फोन अब भी रखते हैं वो, लेकिन उन्हें ज्यादातर स्कूल्स में कहा जाता है कि वो उसे लॉकर में रख लें, यूज नहीं कर सकते हैं। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम का एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है, ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल सपोर्ट सिस्टम है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई हेल्थ कंडीशन है, कोई डिसेबिलिटी है, लर्निंग चैलेंज है, तो स्कूल उनके लिए स्पेशल अकोमोडेशंस प्रोवाइड करता है, उनको स्पेशल जो है ना एक सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है। और ये क्या सिस्टम होता है, इसको बोला जाता है सेक्शन 504 ऑफ रिहैबिलिटेशन एक्ट। इसको कॉमनली 504 बोलते हैं। और अकोमोडेशंस उनको दिए जाते हैं, जैसे कि अगर उनकी कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए एग्जाम का, तो वो प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल सीटिंग, मॉडिफाइड असाइनमेंट,
गोल वही होता है कि स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ के अमेरिकन स्कूल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ कई सारी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि बड़े बड़े कैफेटेरिया। The fact that they have a fully functional restaurant that's open to the public was the biggest draw for me. Classically trained chefs at universities after this program. बड़ा फूड कोर्ट है पूरे स्कूल में, और लंच प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है थ्रू प्रोग्राम्स थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। स्कूल्स में होते हैं जिम्नेजियम्स, बहुत बड़े स्पोर्ट्स फील्ड्स, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर लैब्स। Let's come look at some facilities. Let's do this. Now, Allen isn't your normal run-of-the-mill public school. This is the largest high school in the world, with nearly 7,000 students. Their campus is over 1 million square feet and is home to some mind-boggling facilities, like their 12 different basketball gyms, $80 million football field, their indoor practice center, on-campus restaurants, student bank, and so much more. One of our practice gyms. We have 11 gyms in here. A lot of high schools, especially around here, like you got to share weight room with every sport. Like you have one weight room, maybe two. Football has their own weight room underneath the stadium. There's a people play on the floor, so like a video guy and a photographer that are with us, kind of like full time. It's gonna take a little while. Kitchen. We have a student-run restaurant here called the Blue Cafe, which is right around this corner. There's a chef here. He teaches the class, but they're selling. They're like, as a teacher, you can come here any day and buy lunch. Take your order. Like, pretty crazy. That newsroom's nuts. It's like full scale, Oscar level. Oh look, speaking of that, add to the list. There's a Grammy. They've got the largest band in the world. Yes, that. In the world. In the world? Its own field and facility, the dozen tennis courts on campus, and the massive baseball fields you see. Football is truly the heartbeat of this city. So indoor, you can tell it's kind of got that like 90s vibe almost. Oh, it's great in here. This is nuts, bro. I played in a lot of cool places in college. My first ever college game was at Boston College. पूरा कैफेटेरिया मिल जाएगा आपको। ऐसे भी स्कूल्स हैं जो भी लो इनकम ग्रुप के होते हैं, उन्हें खाना भी प्रोवाइड होता है। और आप इफ़ यू वांट टू परचेज, तो जिनकी इनकम कम हो उन्हें देती है सरकार, और उसके अलावा आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं कोई भी डिजर्ट्स और कोई भी खाना पीना अगर आप घर से नहीं ला सके, या फॉर अ चेंज यू वांट समथिंग, तो ये भी फैसिलिटी होती है यहाँ पर, जो कि इंडिया में स्कूल्स में पता नहीं अब होती हो तो, पर अब तक तो मैंने नहीं देखी। इसके अलावा यहाँ पे यूएस में करियर और वोकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। अमेरिकन हाई स्कूल्स का एक यूनिक फीचर ये भी है कि यहाँ करियर और टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। स्टूडेंट सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ रहे होते हैं, वो प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीख रहे होते हैं। जैसे इस तरह के प्रोग्राम्स हुए, ऑटोमोटिव रिपेयर है, कॉस्मेटोलॉजी है, कि स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी कर लो। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो इंडिया और अमेरिका के स्कूल सिस्टम्स दोनों के पास ही अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अमेरिका के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जैसे सेफ्टी ड्रिल्स होती है, काउंसलिंग सपोर्ट होता है, डिसेबिलिटी अकोमोडेशंस होते हैं, प्रैक्टिकल करियर ट्रेनिंग होती है। टीचर स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि क्वेश्चंस पूछो, डिबेट करो, अपने ओपिनियन दो, उनका क्या पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ के बारे में। क्लासरूम डिस्कशंस बहुत होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं एजुकेशन का। इसका गोल ये होता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो। टीचर्स को स्टूडेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है, और ये प्राइवेसी लॉज ये प्रोटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। फैमिली एजुकेशनल राइट्स और प्राइवेसी एक्ट होता है। इस लॉ के अंडर टीचर जो है किसी स्टूडेंट्स की ग्रेड्स या रिकॉर्ड्स पब्लिकली शेयर नहीं कर सकती। मैंडेटरी चाइल्ड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर टीचर्स को कोई सस्पिशन हो कि स्टूडेंट किसी अब्यूज से, नेग्लेक्ट से या किसी सीरियस हार्म का विक्टिम है वो, या हो सकता है, तो उसे ये रिपोर्ट करना पड़ता है। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है इस टीचर का टू रिपोर्ट समथिंग लाइक दिस। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज कोऑर्डिनेट करते हैं एजेंसीज जैसे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज। इसका पर्पस होता है स्टूडेंट्स की सेफ्टी इंश्योर करना। अमेरिका में टीचर्स को सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं दिया जाता है कि आपको ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाना है, एडिशनल ट्रेनिंग भी मिलती है, जैसे कि क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी बेसिक्स, बुलिंग प्रिवेंशन, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग। स्कूल्स में टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि कैसे हैंडल करो अगर स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, लर्निंग चैलेंजेस हो, या बुलिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम भी कंडक्ट किए जाते हैं। टीचर्स को इमरजेंसी सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि फायर इमरजेंसी हो जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, स्कूल लॉकडाउन हो, उस सिचुएशन में क्या करें। तो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में प्रिपेयर्ड रहें, उन्हें गाइडलाइंस मिलती है जो उन्हें फॉलो करनी पड़ती है। अमेरिकन स्कूल में रैंक्स नहीं होती है, रैंकिंग सिस्टम नहीं होती है कि आप बताओ कि भाई ये तो फर्स्ट आ गया और ये लास्ट आ गया। मुझे याद है कि अगर
रैंक है ना एक भी नीचे हो जाए कि सेकंड के बजाय आप थर्ड आ गए, फर्स्ट के बजाय सेकंड, तो वो कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती थी कि तो अमेरिकन स्कूल्स में टीचर्स डोंट प्रेज वन चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ अदर, क्रिटिसाइज अनदर इन फ्रंट ऑफ अदर, और दे डिस्कस अचीवमेंट्स इन क्लास. टीचर्स डोंट ओपनली डिस्कस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, ये कि इसने ये बहुत अच्छा किया, वो तो बेकार है, ये बहुत अच्छा है. तो इस तरह का कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म हो, प्रेज हो, ऐसा कुछ नहीं होता. पर कोई इंडियन स्टूडेंट अमेरिकन स्कूल में पहली बार आता है तो उसे ये डिफरेंस नजर आता है. अगर ऐसा कुछ डिस्कस करना होता है टीचर्स को तो वो पेरेंट्स के साथ जो मीटिंग्स होती है, ऐसे डिस्कशंस होते हैं, तो पेरेंट टीचर मीट जो होती है उसमें वो डिस्कस करते हैं. बाकी कोई रैंकिंग कल्चर नहीं होता. टीचर्स नॉर्मली किसी एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के सामने कंपेयर नहीं करेगी, और अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म भी करे तो भी टीचर यूजुअली प्राइवेट फीडबैक दे देगी, अलग से फीडबैक देगी. पूरे क्लास के सामने उसकी बहुत तारीफें करना ये कम होता है. अमेरिकन स्कूल्स को फॉलो करना पड़ते हैं लॉज, जैसे कि फैमिली एजुकेशनल राइट्स एंड प्राइवेसी एक्ट. इस लॉ के अंडर टीचर्स को केयरफुल रहना पड़ता है. किसी भी स्टूडेंट्स की ग्रेड्स, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, पर्सनल प्रोग्रेस पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते. इसलिए टीचर्स यूजुअली अवॉइड करते हैं पब्लिक कंपैरिजंस, पब्लिक क्रिटिसिज्म, पब्लिक रैंकिंग अनाउंसमेंट्स. स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस का ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, प्राइवेसी लॉज का ध्यान रखें. तो क्लासरूम में प्रेज एंड क्रिटिसिज्म ये जनरली टीचर्स नहीं करते हैं. तो कई बार लोगों को लगता है अरे मैंने इतना अच्छा किया, मेरी तो कोई नाम भी नहीं लिया, कोई तारीफ भी नहीं की, कुछ भी नहीं कहा. पर ऐसा करना ही नहीं होता. तो उनको पब्लिक में एम्बैरेस नहीं करते. इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट्स क्लासरूम चेंज करते हैं. इंडिया में टीचर्स क्लासरूम में आती हैं, यहाँ बच्चे अलग अलग क्लासरूम में जाते हैं. जैसे कि मैथ क्लास के लिए अलग क्लास में जाएंगे, हिस्ट्री क्लास में अलग क्लास में जाएंगे, कंप्यूटर्स के लिए अलग क्लास में जाएंगे. ऐसा नहीं होता कि बच्चे उसी सेम क्लासरूम में पूरे दिन बैठे रहेंगे. क्लासरूम उसी तरह से डेकोरेटेड होती है, उसी तरह का इक्विपमेंट होता है, उसी तरह की सप्लाईज आपको वहाँ मिलेंगी, और बच्चे अलग अलग क्लास में जाते हैं. Inclusion classrooms allow students with disabilities to learn alongside peers with necessary support. तो अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटी है तो दूसरे बच्चों के साथ ही सीखते हैं, पर उन्हें अलग से अटेंशन दिया जाता है. India has policies supporting inclusive education, such as the Rights of Persons with Disabilities Act. However, implementation challenges include shortage of trained special education teachers, limited school resources, large class sizes, less individualized support plans. Special education is improving. United States में language support is a major part of schooling due to immigration diversity. तो इतने इमिग्रेशन की वजह से लैंग्वेज सपोर्ट भी दिया जाता है. Programs include ESL, English as a Second Language, bilingual education, sheltered instruction models. Students who arrive speaking another language receive language assessments, dedicated ESL teachers, adapted curriculum and small group support. Now, if a Hindi-speaking child moves to Tamil Nadu or Maharashtra, schools could provide introductory course in the local language. Teachers trained to multilingual classrooms could support integration. This encourages inclusion instead of punishment or exclusion. Language tensions sometimes occur because states want to preserve local languages and culture. A balanced approach could include respect for regional languages, promotion of Hindi and English as common linked languages. In the United States, students are encouraged to ask questions, challenge ideas respectfully, express opinions. Teachers are trained to create psychologically safe learning spaces. In India, the traditional classrooms often emphasize discipline, quiet listening, lecture-based instruction. Students may sometimes feel discouraged from asking questions frequently. उन्हें ये कहा जाता है डिस्टर्ब मत करो बार बार, आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, बस अब ज्यादा चीजें मत पूछो. एक क्लास जो बिल्कुल चुपचाप बैठी होगी वो सोचेंगे बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा है, सब चुपचाप बैठ के सिर्फ सुन रहे हैं. इसमें स्कूल्स एड्रेस मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग थ्रू स्कूल काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, social workers and anti-bullying programs. Teachers here in US are trained to note signs of abuse, depression, neglect. Social emotional learning is often integrated into the curriculum. In US, discipline focuses on behavior management, restorative practices, counseling interventions. Physical punishment is not allowed. India में अगर आप देखोगे तो discipline is relied more on authority and strict control. Although corporal punishment is officially banned in schools, enforcement still varies.
US में teaching methods often emphasize project-based learning, hands-on experience, group work, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रेजेंटेशंस होंगे, फील्ड लर्निंग एक्टिविटीज बहुत होती है. लर्निंग इज डिजाइन्ड टू बी इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग. India में teaching has traditionally focused more on textbooks. The US model places emphasis on inclusive education, teacher licensing, continuous professional development, student participation, emotional well-being, and India's system is evolving and undergoing major reforms. But challenges still remain in areas such as teacher training consistency, special education access, क्लासरूम पेडागोजी. यहाँ टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि अगर कोई बच्चों के साथ कोई एंजाइटी, बुलिंग, फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ भी हो तो उसे सपोर्ट किया जाए, एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जो बच्चा आके बोल सके, पूछ सके, उसे कोई परेशानी हो तो उस बारे में बात कर सके. बिहेवियर मैनेजमेंट पे, रेस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस पे बहुत फोकस किया जाता है. The big difference, college credits in high school. In many American schools, students don't have to wait until age 18 to start college. They can actually start taking college classes while still in high school. This system is called dual enrollment. Through this program, a high school partners with a college or a university. Students attend a real college level class, and when they pass the course, they receive 2 credits at the same time. One for their high school diploma and one for their future college degree. So by the time they graduate high school, some students already finish 1 full year of college coursework. In some early college programs, students even graduate high school with an associate degree of up to 60 college credits. Imagine finishing school and already being 1 or 2 years ahead in college. Many American high schools also connect students directly with companies through programs like Career and Technical Education (CTE). Students can do internships while they are still studying. These internships can be in the fields like technology, healthcare, media and design, finance, engineering, automotive, hospitality. Some internships even pay students. In some programs, students work 20 to 25 hours per week, getting real workplace experience while still earning school credit. A student who wants to become a nurse might intern in a hospital. A student interested in robotics might work in a tech lab. Another student interested in filmmaking might intern with a media studio. These programs help students understand real workplaces, build professional skills, create networks, and discover what career actually suits them, what they are actually interested in. So education is not only inside classroom, it also happens in offices, hospitals, labs, studios, construction sites, and tech companies. Students learn by actually doing the job. If we compare this with India, in India, most students experience a very different system. After class 10, students are usually forced to choose between 3 streams: science, arts, commerce. Once you pick that stream, your path is almost fixed. Maybe there might have been some changes now. Something might have changed. I'm not sure about that. But most learning becomes focused on exams, marks, competitive entrance tests. Practical exposure to careers usually comes much later in college. Internships often start after graduation, and very few high schools offer real college courses or industry learning. Even when internships exist in India, they are mostly offered at the university level, not during the school years. So millions of students graduate high school without ever seeing how real working world looks. Why this matters? The American model shows students to discover their interests early, avoid choosing the wrong career, and develop practical skills, and sometimes even start earning early. तो honestly देखा जाए तो इंडियन और अमेरिकन सिस्टम्स जो हैं, दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स है, दोनों की अपनी वीकनेसेस है. कहीं डिसिप्लिन अच्छा है, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन है, कंपेटिटिव मेरिट सिस्टम है. कंट्रीज लाइक अमेरिका, वहाँ क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इंटरैक्टिव लर्निंग, इन पे फोकस ज्यादा है. A message for the Indian education system is that India has some of the most intelligent and very hardworking students in the world, but imagine the potential if the system added career-focused subjects in school, industry internship for teenagers, college credits through high school, partnerships between schools and companies. Instead of preparing students only for exams,
Education could start preparing them for life and careers. Education का purpose होना चाहिए curiosity, confidence, empathy and critical learning. ये सब भी उतना ही जरूरी है जितना कि grades जरूरी हैं. तो आपके हिसाब से एक ideal classroom कैसा होना चाहिए? और अगर आपको ऐसे मीनिंगफुल डिस्कशंस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. I gotta go. I can't let him hear me. Hurry. It's not on though. They're not sure. Okay. We'll repeat, armed with a rifle. He's requesting for SWAT by the funeral home south of the building. I didn't even bother throwing my rifle plates. Go. Kids coming out. We broke. This is what we're gonna do. Y'all gotta come out this door. You're gonna take a left and then follow the cops. Take the left. Go fast. Go. My teachers are so hard, but they're shot. Okay, please. Someone's trying to get you. Chloe, okay? Please, I can't wait. You have a child on the line. Students are not just studying to pass exams. Students are studying to build a career. It's career focused, and that's why many American high school graduates already have the skills, experience, and the direction before they even enter college.